Hello everyone, I'm Dr. Chirag Bansal. I'm currently pursuing MCH Neurosurgery at AIIMS New Delhi. Today I'm going to share another important topic with all of you who have joined residency just now. This is very important topic that how to tackle with initial few days of residency and how to start your residency. What are the important things that you should focus during initial few days of residency so that you can adjust smoothly to your residency and to your branch. So what are the important points that you should consider? First of all is branch. There can be two possibilities when you select your branch. First, if your rank is good, then I assume that the branch you have selected is of your choice. And there is another possibility that if by chance your rank is not as per your expectation, your branch might not be according to your choice. But still, you have considered this branch in some part of your thought process and you are okay with it. In both the scenarios, how to tackle the initial few days of residency, I shall tell you. One is expectation, that you expected this will happen in my branch and this will happen in this institute in my residency. One is reality. These two may vary. So how to tackle that? Suppose I am taking an example of surgery. Initially, a candidate who is going to opt surgery as a branch, he might think of surgical exposure from initial part of his residency and the cutting chances, but that may not happen in actual scenario. हो सकता है उसको ओटी में उतना एक्चुअल में करने को ना मिल रहा हो एंड वार्ड वर्क में ज़्यादा करना पड़े. So this might be reality and this might be expectation. So keep your expectations as minimum as possible. Keep it as minimum. बिकॉज जितना कम आपकी एक्सपेक्टेशन रहेंगी शुरू के कुछ पार्ट में, उतना अच्छा आपको आउटकम मिलेगा धीरे धीरे. बिकॉज आप अगर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको आपके सीनियर्स आपके वर्क को देख के खुद कटिंग चांसेस भी ऑफर करने लगेंगे एंड देन दैट विल बी अ बोनस फॉर ऑल ऑफ यू. Next, patience. Surgery or whether any branch requires so much of patience. You should never take anything for granted. Everything should be offered to you as a gift of your hard work. This will be the best scenario that will help you to excel in good books of everyone. Work-life balance. In initial part of residency, first year junior resident or first year PG resident is expected to be involved 24/7 or most of the time of the residency. So you might think that why did you choose this branch and your work-life balance can suffer. So believe me, be patient, keep on doing what is expected from you, be sincere with your work, and gradually everyone will notice your sincerity, and the similar level of things will be offered to you also as your other colleagues who are not so sincere or who are taking much of leaves during initial part of residency. Similar amount of leaves or similar amount of break will be given to you also, but in good books of everyone, if you are sincere with your work and you are patient enough. Your work-life balance will come back, but after some time. If you have selected so much difficult branch, then before selecting the branch like neurosurgery, it is in general hectic branch. So work-life balance is difficult in such a branch that you understand before opting such a branch. But if there is some unrealistic expectation from any other branch that you will get so much time or something, then that expectation might not be met in initial few days of your residency. So आपको बहुत ज़्यादा patient, बहुत ज़्यादा sincere, work ethnic होना है सो दैट आपको ये सब चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको ऑफर की जाए खुद से. सीनियर्स, रिमेंबर, आपकी ईगो की कोई प्लेस नहीं है. नो प्लेस फॉर ईगो. व्हेन यू जॉइन अ ब्रांच, देन यू शुड बी वेरी मच सिंसियर टुवर्ड्स योर सीनियर्स. उनको पूरा रिस्पेक्ट करना है, उनकी हर बात को मानना है एंड यू शुड नॉट आर्ग्यू. किसी बात पे आर्ग्यू नहीं करना, चाहे किसी भी तरीके का काम आपको वो बोल रहे हैं. वो भी अपनी रेजिडेंसी में उस पार्ट से गुजर चुके हैं, सो दे नो क्या करना ठीक है और क्या करना नहीं ठीक है. अगर कोई आपको कुछ इस तरीके का काम बोल रहा है विच इज नॉट गुड टू बी आस्क्ड फ्रॉम ए जूनियर, देन अदर सीनियर्स विल नोटिस दैट एंड सूनर और लेटर वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा. पर आपको आगे से कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो कि एक जूनियर को अपने सीनियर से नहीं बोलना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल मेक योर लाइफ ईजियर. Positive side. Every institute, every branch has a positive and a negative side. Both has positive एंड नेगेटिव साइड. जैसे कि आप किसी भी ब्रांच की बात कर लो, सर्जरी की बात कर लो. सर्जरी में वर्क लाइफ बैलेंस आपका उतना अच्छा नहीं होता, बट आपको कटिंग चांसेस मिलते हैं, आप पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट इंटरवेंशन करते हो, यू हैव ए गुड फीलिंग. यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स इन इनिशियल पार्ट ऑफ योर रेजिडेंसी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज सिमिलर टू अ मेडिसिन. जैसे एक मेडिसिन हम किसी बीमारी में देते हैं पेशेंट को, उसका एक इफेक्ट भी होता है, उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है. हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि आप इफेक्ट के बारे में सोचो, साइड इफेक्ट के बारे में मत सोचो. सेम होल्ड्स ट्रू हियर. आपको अपनी ब्रांच के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है, उसके ऊपर फोकस करना है. ओनली देन यू विल बी हैप्पी एंड यू विल कीप ऑन एक्सेलिंग इन योर रेजिडेंसी. एकेडमिक्स. डोंट स्किप एकेडमिक्स. आपकी इनिशियल पार्ट ऑफ रेजिडेंसी में नो डाउट आपके पास बहुत सारा काम होगा. आपको सबसे ज़्यादा टाइम वार्ड में स्पेंड करना पड़ेगा, पेशेंट्स को वर्कअप करना पड़ेगा, राउंड्स दिलाने पड़ेंगे. बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने एकेडमिक्स को भूल जाओ. आपको दिन में आधे घंटे का भी टाइम मिल रहा है, 1 घंटे का भी टाइम मिल रहा है, आप वो टाइम अपने
पढ़ाई में स्पेंड कीजिए और आपकी क्लासेस अगर हो रही हैं डिपार्टमेंट में, उनको भी उतने ही ध्यान से अटेंड कीजिए। अगर हो सके तो उनके भी नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये छोटी-छोटी लर्निंग्स आपको बाद में बहुत हेल्प करेंगी। जब आपके बाद में मेन एग्ज़ाम होंगे, उस टाइम पे आपके ऊपर बर्डन क्रिएट नहीं होगा। आप धीरे-धीरे एक्सेल कीजिए, उन लर्निंग्स को लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए। एवरीवन विल टीच यू। थीसिस एंड रिसर्च, डोंट इग्नोर थीसिस एंड रिसर्च। फर्स्ट 6 मंथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको एक प्रोटोकॉल मिलेगा थीसिस का, आपको वो प्रोटोकॉल बनाना होगा। तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए, अगर आपने कोई ब्रांच ली है, श्योरली आपको उसमें कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आप अपने गाइड से बात कीजिए, उनको बताइए कि आपको ये चीज़ में इंटरेस्ट है, वो आपको वैसा वाला टॉपिक अलॉट करेंगे, उस पे आप काम कीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, वो प्रोटोकॉल को बनाइए, उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर कीजिए। फिर धीरे-धीरे जब आप डाटा कलेक्शन स्टार्ट करेंगे, अपने पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे कॉल कीजिए। कोई भी काम ऐसे मत कीजिए कि एंड में पाइल अप हो जाए। स्मॉल स्मॉल स्टेप लीजिए, सारी चीज़ों को धीरे-धीरे करेंगे तो एंड में दिक्कत नहीं होगी, वरना एक साथ कोई काम नहीं हो पाएगा आपका एंड में। तो हर चीज़ को साथ लेकर चलिए, बैलेंस आउट कीजिए, देन ओनली यू विल बी अ गुड रेज़िडेंट एंड थिंग्स विल गो स्मूथली फॉर यू। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी लाइफ़ को ईज़ी करने के लिए हैं। अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ही आगे आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। Co-PGs एंड रेजिडेंट्स, बिहेव नाइसली टू ऑल ऑफ योर को-पीजीज एंड रेजिडेंट्स। किसी भी रेजिडेंट से, को-जेआर से, को-पीजी से लड़ाई झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा। अगर कोई ज़्यादा लीव ले रहा है, 1-2 घंटे आपसे ज़्यादा काम करवाने की बात कर रहा है, कुछ फेवर ले रहा है, कुछ भी अननेसेसरी वर्कअप आपको दे दिया, कोई भी ऐसी चीज़ जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं थी, अगर आप उससे आर्ग्यू करेंगे तो वो छोटी सी चीज़ आपकी बहुत बड़ी रेजिडेंसी है, आपको उन्हीं रेजिडेंट्स के साथ बितानी है, आगे आने वाले टाइम में आपके रिलेशंस को खराब कर सकती है। अगर आप उसी टाइम पे हँस के वो चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे, उसको भी पता है उसके मन में कि वो ये चीज़ आपसे गलत तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको भी रियलाइज़ होगा, कल को आने वाले टाइम में आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी, ही और शी विल आल्सो बी देयर फॉर यू। तो कुछ आर्ग्यू करने की, कुछ भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी एज़ फ्रेंडली टू योर को-रेजिडेंट्स एज़ पॉसिबल। दिस विल आल्सो मेक योर लाइफ वेरी मच ईज़ी। आउटिंग, ब्रेक, लीव एंड ऑफ टाइम। नेवर एक्सपेक्ट कि जब आपके कॉल डे चल रहे हैं, कोई भी बहुत हेक्टिक डे है, कोई ओटी डे है, आप उस टाइम पे लीव मत लीजिए। जब आपने बहुत अच्छे से अपना काम दिखा दिया है, आपके सीनियर्स और आपकी फैकल्टी आपके काम से हैप्पी हैं, देन यू कैन आस्क कि सर मैं इस दिन ले सकता हूँ, 1 और 2 डेज़, नो वन विल डिनाई। और जब आप ऑफ टाइम पे हो, जब आप अपना ड्यूटी कवर कर चुके हो, आप लीव पे हो, देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर वार्ड। कोई कॉल आता है, यू कैन आंसर इट, अदरवाइज़ यू कैन एन्जॉय। Everyone will be liking your company also, and everyone will happy to offer you that leave, but that should be as a reward. That should not be out of increasing duty of your co-residents or giving some trouble to other residents. Scoldings and faculty interaction. Scolding and faculty interaction. इनिशियल पार्ट ऑफ रेजिडेंसी में जब भी आप राउंड्स वगैरह पे रहोगे, आप अपने राउंड्स प्रेज़ेंट करोगे, किसी-किसी बात पे आपको फैकल्टी डाँटेंगे, कुछ पूछेंगे, आपको नहीं आता होगा। कोई भी चीज़ दिल पे नहीं लगानी है, दिस इज़ द फेज़ जो आपको सिखाने के लिए है, सब कुछ आपकी लर्निंग के लिए है, उसको उतना ही लाइटली लेना है, उनकी बात को सुनना है एंड ओके सर, सॉरी सर, आगे से नहीं करूँगा, ऐसे करके आपको उन चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करना है, सो दैट आगे आने वाले टाइम में आप उन चीज़ों को दोबारा मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। जो भी आपके सीनियर्स हैं, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, दे नो बेटर देन यू। सो बी ओबीडिएंट एंड बी हम्बल टुवर्ड्स देम। ओके। सैटिस्फैक्शन। अब जब आप काम कर रहे हो, आपने कोई भी काम किया, उससे किसी पेशेंट का अच्छा हुआ, कोई सर्जरी हो गई एंड देन पेशेंट इज थैंकिंग यू, यू शुड फील सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन जो है, दैट कम्स आउट ऑफ योर वर्क, दैट कम्स आउट ऑफ योर वर्क। आपको इस तरीके से काम करना है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो बैक, यू शुड हैव सम मेमोरीज कि हाँ, आज मैंने उस पेशेंट का ये वाला काम करवाया, उसकी ये वाली रिपोर्ट आ गई एंड नाउ दिस ट्रीटमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड। सो उस पेशेंट का ये काम अच्छा हो गया एंड देयर इज 1 और 2 पेशेंट हू विल बी टेलिंग थैंक यू डॉक्टर। तो दैट शुड बी द सैटिस्फैक्शन इनिशियल पार्ट ऑफ योर रेजिडेंसी एंड दैट शुड बी योर अचीवमेंट। ओके। फ्यूचर पर्सपेक्ट्स। अब आगे कल को आप भी सीनियर बनोगे, जब आप सीनियर बनोगे, आपके पास भी टाइम होगा अपने जूनियर से कुछ कहने का, करने का। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, बी द सीनियर दैट यू वांटेड व्हेन यू वर अ जूनियर। इस बात का मतलब समझ आया? आपको बिल्कुल वैसा सीनियर बनना है, जो आप चाहते थे जब आप खुद एक जूनियर हुआ करते थे। जो बातें आपको किसी सीनियर की अच्छी नहीं लगती, वैसा कभी नहीं बनना है, ठीक है? हमेशा जूनियर कोई आपका सर्वेंट नहीं है, वो आपका एक ऐसा कोलीग है, जो आपसे ऐज में, एक्सपीरियंस में कम है, ठीक है? बट सूनर और लेटर वो भी आपकी पोज़ीशन पे आएगा। उससे उतना एक्सपेक्ट कीजिए, जितना आप अपने टाइम पे खुद से एक्सपेक्ट करते थे, कि आपके सीनियर आपसे वो काम लें। वो करेगा, आपको रिस्पेक्ट भी दिखाएगा, बट द इंटरेक्शन शुड बी म्यूचुअल। उसके अलावा आपके डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट इन एकेडमिक्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग, सो दैट आपका प्रेजेंटेशंस, पब्लिकेशंस, कोई भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए।
सो दैट आपको अच्छा लगे कि आप अपनी ब्रांच में अपने कैरियर में एक्सेल कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सब चीजें आपको और आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी एंड यू विल बी growing in your career and later on you'll be liking your branch very much. The work will not seem like work to you and you will keep on enjoying your branch and you will say to your friends I have joined the best branch of my career. चाहे शुरू में वो आपकी चॉइस वाली थी या तो नहीं थी, ये टाइम आएगा बिकॉज हर ब्रांच में बहुत स्कोप होता है एंड यू कैन एक्सेल इन एवरी एंड एनी ब्रांच। बिलीव माई वर्ड्स, ये जो मैंने 15 पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो ये 15 पॉइंट्स डेफिनेटली आपकी रेजिडेंसी को बहुत ही स्मूथ बना देंगे एंड आपके मेंटल स्ट्रेस को, इट विल डिक्रीज योर मेंटल स्ट्रेस and it will smoothen your life to a greater extent and will make you a better doctor. My best wishes for all of you. Thank you.